कि आप सबको यह संगीत श्रृंखला बहुत पसंद आएगी। तो कदम कदम बढ़ाए जाए, ये वहाँ पर ये कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है, याद किया जा रहा है नेताजी को। और ये सबसे बड़ा जो समारोह है इस वक्त ये विक्टोरिया मेमोरियल में 1921 में ये यहाँ बना था मेमोरियल।
सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी सुभाष जान हिंद है, सुभाष शान हिंद है। सुभाष जान हिंद है, सुभाष शान हिंद है। सुभाष आन हिंद है, सुभाष मान हिंद है। सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी This is Subhash Chandra Bose speaking to Indians in East Asia. My countrymen in East Asia, in the first place, I desire to thank you most heartily for the warm and enthusiastic welcome that you have given me on the occasion of my public appearance in East Asia, and for the assurance that you have given me of your wholehearted support to our efforts to liberate our dear motherland. तूफान हिंद लाएंगे, वो शान हिंद लाएंगे। तूफान हिंद लाएंगे, वो शान हिंद लाएंगे। फिरंगियों के काम पर वो कहर बन के छाएंगे। सुभाष जी वो शान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को। सुभाष जी तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र को याद किया जा रहा है, उनको नमन कर रहा है आज पूरा देश की आज़ादी में जो उनका अमूल्य योगदान रहा। गुलामी की जंजीरों से देश को आज़ाद कराने वाले नेताजी को नमन। walk on all alone.
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে If no one speaks to you, if no one speaks to you, don't feel you are unfortunate. If no one speaks to you, if everyone just looks away, and if they are scared, if everyone just looks away, and if they are scared, then open your heart and speak out all the words you have in mind and walk on all alone. Speak out all the words you have in mind and walk on all alone. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি সবাই ফিরে যায় যদি সবাই ফিরে যায় ওরে ওরে ও অভাগা সবাই ফিরে যায় যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায় যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায় তবে পথের কাঁটা ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে If there is no one responding to your call, you walk on all alone. If no one shows the light if no one shows the light don't feel you are unfortunate if no one shows the light if they all shut their doors on you on a dark and stormy night if they all shut their doors on you on a dark and stormy night let thunder and lightning set your soul on fire and in the blazing light you burn alone set your soul on fire and in the blazing light you walk alone যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে তবে একলা চলো রে एकला चलो रे ये अद्भुत प्रस्तुति उषा उत्थप के साथ आपने देखी। तो यहाँ रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति हो रही है इतने खूबसूरत विक्टोरिया मेमोरियल में और कुछ ही देर में नेताजी की चिट्ठियों पर आधारित एक किताब का लोकार्पण भी किया जाना है और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित भी किया जाएगा। देश को सलाम सलाम देश को प्रणाम प्रणाम
ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক, সকল দেশের সেরা। ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ, ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরে। ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরে। আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। जागा हुआ है हिंदुस्तान, जागे हैं चांद सितारे, रोशन हुआ है दिल मेरा, सुभाष जी हमारे, सुभाष जी हमारे। চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা কোথায় উজ্জ্বল এমন ধারা, কোথায় এমন খেলে তড়ি এমন কালো মেঘে, কোথায় এমন খেলে তড়ি এমন কালো মেঘে। ও তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে, পাখির ডাকে জেগে সবাই মিলে একসাথে। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি, দেশ का এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। ধন্যবাদ জানাই সমস্ত শিল্পীদের এবং আমাদের আনুষ্ঠানিক পর্বের এরপরেই শুরু। আমরা অপেক্ষা করব মঞ্চে আসনগুলি নিয়ে আসার জন্যে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় রাজ্যপাল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, উপস্থিত আছেন ভারত সরকারের মাননীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী, মাননীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবহন মন্ত্রী। এরা সকলে মঞ্চে উঠলে
আমরা আমাদের আনুষ্ঠানিক পর্বের সূচনা করব। সেই সঙ্গে বলে রাখি যে আজকের এই পড়ন্ত বিকেলটি নিশ্চয়ই সকলের স্মরণে স্বর্ণস্মৃতি হয়ে থেকে যাবে। এরকম একটি সৌধ, এই সৌধর প্রেক্ষাপটে আজকে এমন একজন মহান জননায়কের আমরা ১২৫তম জয়ন্তী পালন করছি। আমরা অপেক্ষা করছি মঞ্চটি প্রস্তুত করে নেওয়ার জন্যে, এবং মঞ্চ প্রস্তুত হলেই আমরা আমন্ত্রণ জানাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য বিশিষ্টজনকে মঞ্চে আসার জন্যে। तो स्वागत है मंच पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। तालियों से स्वागत कीजिए। माननीय राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ जी का। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी का। সেই সঙ্গে ভারত সরকারের অপর দুই মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বাবুল সুপ্রিয়, শ্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল। আমরা একদম শুরুতেই অনুরোধ জানাবো ভারত সরকারের সংস্কৃতি এবং পর্যটন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেলকে স্বাগত ভাষণ দেবার জন্যে। अब हम आमंत्रित करेंगे हमारे माननीय संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल को कि हमें स्वागत भाषण से संबोधन करें। पूज्य नेताजी की 125वीं जयंती के इस उत्सव पर पराक्रम दिवस के इस पहले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदैव प्रधानमंत्री जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आपने पराक्रम दिवस के रूप में पूज्य नेताजी की इस जयंती को घोषित करने की जो अनुमति दी है, इस बात के लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथ ही आपने इस पहले कार्यक्रम में उपस्थित रहने की अनुमति दी है और आप यहाँ उपस्थित हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल। नेताजी की जयंती और नेताजी को याद किया जा रहा है। नेताजी द्वारा इतिहास में, हिस्ट्री में भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो योगदान दिया गया, जिसे कई इतिहासकार ये भी कहते हैं कम कर बताया गया, कम कर दिखाया गया, कम कर पढ़ाया गया, उसे लेकर भी कई तरह के सवाल आज इन तस्वीरों को देखकर एक बार फिर से आपके जहन में आ रहे होंगे। मेरे साथ कई खास मेहमान हैं, जल्दी से आपको बता देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर जफर इस्लाम है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, लेकिन सबसे पहले मैं हरिशंकर गुप्ता जी के पास जाना चाहती हूँ, कांग्रेस के नेता हैं। हरिशंकर गुप्ता जी, कांग्रेस और नेताजी के रिश्तों को लेकर एक बड़ा सवालिया निशान रहा सा। आज जब मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, प्रणाम जी, आज जब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ तो कई इतिहासकार इस सवाल को उठाते हैं, उनके जो किताबों के अंश हैं वो इस सवाल को खड़ा करते हैं कि क्या महात्मा गांधी और नेहरू के गठजोड़ ने भारत की आजादी में, भारत के स्वाधीनता संग्राम में नेताजी के महत्व को, नेताजी की अहमियत को, उनके योगदान को कमतर और कमजोर करने का काम किया। ये बिल्कुल गलत बात है आदित्य जी, बड़ा विनम्र होकर मैं आपसे कह रहा हूं। और जिन लोगों ने ये सवाल उठाया है वो कांग्रेस की हमेशा से खिलाफत करते रहे हैं। विशेष रूप से आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग इस बात को उठाते रहे हैं। हमारे यहाँ 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने नेताजी, तो ये सवाल कैसे पैदा हो सकता है? महात्मा गांधी जी की मौजूदगी में, नेहरू जी की मौजूदगी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने 2 बार, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, बंगाल सेक्रेटरी रहे कांग्रेस कमेटी के, और नेताजी का एक विशेष दर्जा कांग्रेस में हमेशा रहा है, एक विशेष सम्मान, आदर और इज्जत कांग्रेस में रही है। उनको कभी भी इस बात के लिए ऐसा नहीं कहा गया कि उनको कहीं नीचा करके देखा गया हो या उनको कम तक करके देखा गया हो। जो भी लोग इस बात का आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं वो बिल्कुल गलत बात है। और इसके साथ में दूसरी बात मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि कांग्रेस ने हमेशा से नेताजी के परिवार को, उनकी पत्नी को, उनके परिवार को हमेशा से देखभाल की है,
चाहे वो नेहरू जी रहे हों, चाहे वो इंदिरा जी रही हों, चाहे वो राजीव गांधी रहे हों, हमेशा से उनके परिवार की देखभाल की है। देखिए नेताजी का हमारे देश के अंदर विशेष रूप से युवाओं के अंदर एक स्पेशल स्थान है, और जो जिस नीति के ऊपर नेताजी चल रहे थे वही नीति कांग्रेस की नीति आज तक भी है। उन्होंने सपना देखा था, एक भारत सबका भारत का सपना देखा था, आज भी हम उसी पर चल रहे हैं। नेताजी ने कभी भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में फर्क नहीं समझा। वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हो। और इस बात के लिए आपने अभी कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने की बात कही। सर, आप मुझे बताएंगे 1939 में किस तरह के हालात थे जब नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? मैं सवाल आप ही से पूछ लेती हूँ सर। देखिए 78 कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। हर साल सेशन होता था, हर 2 साल में कांग्रेस का अधिवेशन होता था, उसी के अंदर अध्यक्ष चुना जाता था। कांग्रेस के लोगों ने सर्वसम्मति से नेताजी को अध्यक्ष बनाया। कांग्रेस के लोगों ने उनका सम्मान किया और 2 बार अध्यक्ष बनाया उनको। 1939 की बात कर रहे हैं मुझसे सर, सोच समझ कर बोलिएगा। 1939 की बात कर रहा हूं मैं सर, सोच समझ कर बोलिएगा आप। मैं बोल रहा हूं ना। हाँ सब आप सोच समझ के ही बोल रहा हूं। हाँ सर। 1938 में 1939 में दोनों साल अध्यक्ष बने वो। अच्छा सर, 39 में बने थे या चुनाव लड़कर जीते थे? चुनाव लड़कर जीते थे, चुनाव ही होता था कांग्रेस में। तो सर आपने तो बोला कि उनको चुना गया, सर्वसम्मति की बात आप कर रहे थे सर। चुनाव में सर्वसम्मति की बात आप मुझसे कर रहे हैं सर। जिन लोगों ने नहीं, आप बाल की खाल मत निकालिए, मेरा कहने का मैं बाल की खाल निकाल रही हूँ सर। आप तथ्यों को घुमा दीजिए अपनी सुविधा के हिसाब से, और मैं बाल की खाल निकाल रही हूँ। आदित्य जी, मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि दोनों साल नेताजी अध्यक्ष बने थे, और कांग्रेस में यह परंपरा रही है 1885 से लेकर आज दिन तक कि कांग्रेस का अध्यक्ष जो है चुनकर ही बना जाता है। कांग्रेस के अंदर एआईसीसी के जो मेंबर्स हैं, सर तथ्यों का एनकाउंटर मत कीजिए, वो उसको किताब में से बताऊंगी आपको। कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। আপনাদের সকলের কাছে देखिए तस्वीरें हम आपको इस वक्त कोलकाता में जो कार्यक्रम है, लेकिन इस वक्त ममता बनर्जी जिस तरीके से उन्होंने कहा वो कुछ कहना नहीं चाहती हैं, अपमान की बात उन्होंने यहाँ पर की है। हमारी कोशिश रहेगी उनके द्वारा जो कहा गया अंश है वो हम आपको एक बार फिर से सुनवाएं। आपको बता दें नेताजी की जयंती का ये कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दीदी का जिस तरीके से रिएक्शन अभी थोड़े ही कुछ ही सेकंड्स पहले हमने देखा है, उस पूरे अंश को आपको सुनवाएंगे हम। लेकिन वो काफी नाराज, काफी खफा उस अंश में दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कहा वो ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती हैं, बुलाकर अपमान नहीं किया जाना चाहिए। हो सके तो वो पूरा अंश जल्दी से हमारे दर्शकों को एक बार फिर से सुनवाइए जरा। लेकिन लाइव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राज्यपाल धनखड़ को आप देख पा रहे हैं, साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंच पर वो काफी नाराज दिखी हैं, खफा दिखी हैं, गुस्से में दिखी हैं, और उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया वो पूरा अंश हम आपको दिखाएंगे अब से बस कुछ ही सेकंड्स में। लेकिन इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं ममता बनर्जी वहां पर आपको दिखाई दे रही है, और ये नेताजी की किताब। और बड़ी बात, आज हम इतिहास के पन्नों को भी पलटकर जो इतिहासकारों द्वारा कहा गया है, जो किताबों में लिखा गया है इतिहासकारों द्वारा, क्या बड़ा सवाल वही, क्या नेताजी के योगदान को, इतिहास में उनकी अहमियत को, उनके कद को कम किया गया, और किया गया तो क्यों कम किया गया, और किया गया तो किसने कम किया? ये वो सवाल हैं जो कई किताबें जो नेताजी पर आई उसके बाद सामने आए हैं। साथ ही हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक तरफ वो सवाल है जो नेताजी के योगदान को इतिहास में सही सम्मान ना मिलने से जुड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ आज के ये सेलिब्रेशंस है, नेताजी की जयंती, 125वीं जयंती, भव्य कार्यक्रम। ममता बनर्जी कह रही हैं कि किसी को बुलाकर बेइज्जत करना ठीक बात नहीं है, बेइज्जती की बात वो यहाँ पर कर रही हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा वो अंश हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके
उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट का पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। तो ममता बनर्जी को आप सुन रहे हैं, काफी नाराज। वो कह रहे हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये सरकारी कार्यक्रम है, और वो कह रही हैं कि अपमान उनका किया गया है यहाँ पर। उससे वो काफी आपको नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ जफर इस्लाम हैं, इस वक्त जुड़ गए हैं। जफर इस्लाम जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो, ममता बनर्जी कह रही हैं कार्यक्रम में बुलाते हैं, अपमान करते हैं, नाराज है वो। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবারে মঞ্চ থেকে অবতরণ করে जफर इस्लाम तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन और कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ शांतनु गुप्ता जुड़ गए हैं। नेताजी के ऊपर उन्होंने एक चैप्टर लिखा किताब में। शांतनु गुप्ता, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मैं हरिशंकर गुप्ता से सवाल कर रही थी, तो हरिशंकर गुप्ता ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि नेताजी के साथ किसी ने कोई ज्यादती नहीं की। कांग्रेस पार्टी में उन्हें दो बार अध्यक्ष बनाया गया, इतना सम्मान उनको बख्शा गया। हालांकि उनके पास शायद इस सवाल का जवाब नहीं होगा कि नेताजी फिर कांग्रेस से अलग क्यों हो गए, नेताजी ने कांग्रेस से अपने आप को अलग क्यों किया। इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। लेकिन एक हिस्टोरियन के तौर पर, एक राइटर के तौर पर नेताजी को लेकर आपके सामने कौन सी बड़ी बातें आई जो आज आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे और हिस्ट्री को सही करना चाहेंगे? अदिति, एक बात तो इस बात से मैं बहुत खुश हूं कि मैं सुबह से ये 8वीं डिबेट कर रहा हूं, और 8वीं डिबेट भी नहीं कहूँगा, डिस्कशन कर रहा हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे, जो प्रधानमंत्री ने 125वीं जयंती मनाने का निश्चय किया है और अपना पूरा वेट प्रधानमंत्री पद का लगाया उसके पीछे। इसकी वजह से हम सारे चैनल डिस्कस कर रहे हैं। देखिए हुआ क्या, जिस तरह से हिस्टोरियंस ने केवल नेहरू का व्यक्तित्व ऊपर उभारने के लिए बाकी सारे नेताओं को पीछे छोड़ दिया, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम के लीडर थे, चाहे वो क्रांतिकारी थे, चाहे वो कांग्रेस के खुद के प्राइम मिनिस्टर थे, चाहे वो सरदार पटेल थे, चाहे वो शास्त्री थे, चाहे वो अंबेडकर थे, सावरकर, श्याम प्रसाद मुखर्जी, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी उसी लीग में आते हैं। तभी हमें आज ये करना पड़ रहा है, इस तरह से स्थापित करना पड़ रहा है। और ममता बनर्जी आज कह रही हैं कि मैं भी ये दिवस मनाऊंगी। ममता बनर्जी भी उसी कांग्रेस से आती हैं, 1984 में वहीं से सांसद बन के आई थी। एक बार कांग्रेस की सरकार में वो स्टेट MHRD मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। आज उनके मंत्री कहते हैं कोर्स मटेरियल में क्यों नहीं है। तो पहली बार जो हमारे नेहरू गांधी परिवार को छोड़ के, नेहरू वाड्रा परिवार को छोड़ के, और जो हमारे लीडर्स हैं जिससे आज की पीढ़ी सीख सकती है, वो भी स्टैब्लिश हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी और ये एक अच्छी फाइट है। मैं तो इसे अच्छा कंपटीशन कहूंगा दीदी, कि नरेंद्र मोदी कुछ कर रहे हैं तो उसके रिस्पांस में कम से कम ममता बनर्जी को भी कुछ करना पड़ रहा है। तो एक अच्छी फाइट है। किस तरह से इन्होंने सारे जो हमारे बड़े लीडर्स थे उनको दरकिनार करा, आज वो फिर से स्टैब्लिश हो रहे हैं। आज का युवा भी उनसे सीखेगा कि क्या उनसे सीखने वाली बात है। जो आपने चैप्टर की बात कही उसका भी जिक्र करूंगा आगे, कि कैसे उनके और वीर सावरकर के बीच में, उनके और अंबेडकर के बीच में संवाद हुए थे, उसको मैंने पूरा इंगित किया अपनी भारतीय जनता पार्टी पे जो मैंने किताब लिखी है जी, उसको भी मैं आगे लाऊंगा। लेकिन हाँ, ये सबको पता है कि वो कैसे बड़ी मुश्किल से लड़ झगड़ के कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और कैसे उनको कांग्रेस से बाहर निकलना पड़ा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.